Trust Hmm. me, clearing pre was more harder than clearing mains because I scored more in mains rather than in pre. You should know that what Yeah. you are studying, Yeah. everything you are studying does not come in the exam. Hmm. But Hmm. whatever you are studying, if that comes in the exam, then Hmm. success is very too many marks available. Hmm. Every platform is offering you too many marks. But the thing Hmm. is that after giving the mock, the analysis section that I was talking about, that is the Hmm. core, I guess, for Oliport. Because if you Hmm. go through a mock of any other platform, they will just give you one line. Ki, this Hmm. is the correct answer. So that does not help much. But when you give a mock on Oliport, you will see that Hmm. there are 3 to 4 points. Saying anything, you just say that I'm very sorry, sir. Even Hmm. that also Hmm. helps. Keep that in mind. Don't just for the sake of answering कि नहीं आज सारे जवाब दे के ही जाऊंगा तो फिर तो नहीं हो पाएगा. Hello everyone, I am Bhagyashree and today we have with us Ashish Kumar who has successfully cleared IBPS SO and is currently working as an IT officer in Punjab National Bank. In this conversation, we will talk about his preparation journey, strategy and experience of working in the banking sector. Welcome Ashish and congratulations on your success. Thank you so much, ma'am. Okay, so could you start by telling us a little about yourself and your background? My name is Kumar Ashish. I basically prevailed from Jharkhand. I had done my 10th and 12th from the same place. After that, I went on to pursue my BCA. Did some jobs also after my BCA. Then I went on to pursue my masters. I completed my masters. I basically have a profile in Java development. And last year itself, I started preparing for IBPS SO and I cleared the exam. And currently, I'm working as an IT officer with PNB, placed Oh. posted in Delhi. So how has your experience been in the bank? कैसा लग रहा है? अभी न्यू ज्वाइनिंग है, नया काम है, कैसा लग रहा है? काम तो सही है मैम. हम्म. मेहनत के बाद में हम कुछ आउटपुट मिलता है तो बढ़िया ही लगता है. एनवायरनमेंट इज गुड, द पीपल आर गुड, द जॉब इज गुड, एवरीथिंग इज गुड. ऊपर से फिर घर वाले भी खुश कि चलो सरकारी नौकरी होगी तो एवरीबडी इज हैप्पी. सो आई एम आल्सो हैप्पी. नो इश्यूज इन दैट. So how does your typical day look like? मतलब आप जाते हो ऑफिस, कैसा काम कैसा रहता है वहाँ पे? काम बेसिकली मैम, देयर आर वेरियस प्रोफाइल्स इन द बैंक. अभी मुझे जो प्रोफाइल मिली हुई है वो बेसिकली एक टेक्नो बैंकर वाली प्रोफाइल है. यू हैव टू be aware of the technical core of the banks also, and along with that your IT skills are good in that. So हम्म. दोनों को मिक्स करके मैम मेरा रोल जो है बेसिकली बैक एंड में एसक्यूएल वगैरह और फ्रंट एंड में आपका हम्म. जो भी लोन से रिलेटेड कॉम्प्लिक मतलब जो क्या कहते हैं टेक्निकलिटीज रहती हैं, तो उन दोनों हम्म. को मिक्स करके मैम बेसिकली वही रोल है अभी मेरा लोन्स से रिलेटेड. तो अभी आपको ये कैसे आया ख्याल कि बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन करना है? मतलब आप सोच ही रहे थे या फिर ऐसे आप कुछ दूसरा परस्यू कर रहे थे एंड देन दिस जस्ट केम अलोंग इन द वे? जैसे मैंने बताया कि मैं जावा डेवलपर था तो जी. मैं प्राइवेट सेक्टर्स को एक्सप्लोर कर रहा था कि फॉर गेटिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज अपार्ट फ्रॉम द हम्म. वन अपार्ट फ्रॉम द वन दैट आई हैड. मेरा एक दोस्त है बैंकिंग सेक्टर में ही है, वो दूसरे बैंक में है. ही इज इन द जनरलिस्ट वन. सो ही ओनली सजेस्टेड मी कि भाई अब तुम्हारी आईटी स्किल्स है तो तुम यू कैन एक्सप्लोर द आईटी अपॉर्चुनिटीज दैट द गवर्नमेंट इज ऑफरिंग इन डिफरेंट पीएसयूज और पीएसबीज. सो वहां से फिर मैंने देखा कि अच्छा सिलेबस भी सही है जो it's doable along with the job. If you don't have much time, I think IBPSSO is a very good exam for that. आप उसके साथ साथ भी प्रिपेयर कर सकते हो जैसे मैंने करा था. तो उसी ने बताया तो फिर वहां से मैंने एक्सप्लोर किया और एक्सप्लोर करने के बाद फिर मैंने प्रिपरेशन करी एंड हियर आई एम नाउ. यही था. मुझे इसमें हेल्प कर गई कि बीसीएमसीए बैकग्राउंड होने के कारण और जो टेक्निकल मैंने काम करे थे तो मेंस वाज नॉट अ टफ जॉब, rather pre was more tough for me. दैट्स समथिंग न्यू. क्यों क्यों था ऐसा? मतलब वही प्री वाज टफर देन द मेंस? Ma'am, see, I was totally out of practice for the pre-syllabus. पीसीएमसी जी. करने के बाद आपको कोई इंग्लिश क्वांट रीजनिंग नहीं करवाता है. डीएसए तो कर हाँ. रहे थे, एसक्यूएल वगैरह जो भी कोर कॉन्सेप्ट्स थे वो तो आप चलो या तो जॉब में या तो थोड़ा बहुत पढ़ के आप कर रहे थे. बट these things हाँ. were totally out of practice. So trust हम्म. me, clearing pre was more harder than clearing mains because I scored मोर इन मेंस rather देन इन प्री. मेरे मेंस हम्म. के मार्क्स बहुत ज्यादा थे प्री से. प्री तो बस वो था ओके. कि क्वालिफाइंग है तो आई वाज जस्ट एमिंग कि प्रैक्टिस 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 समहाउ क्वालिफाई हम्म. प्री. तो बस उसी ओके. में कॉस उसमें प्रैक्टिस बहुत लगता है मैम. एंड जो भी टेक्निकल स्ट्रीम्स के हैं वो सारे स्टूडेंट्स से आउट रहते हैं, ये प्रैक्टिस किसी की रहती नहीं है.
तो मेरे हम्म। हिसाब से अगर लोग ये सोच रहे हैं कि प्री क्वालिफाई कर लेंगे फिर मेंस देख लेंगे, तो मेरे हिसाब से ये गलत अप्रोच है। आप पहले प्री को देखो, क्योंकि प्री ही हम्म। नहीं होगा तो फिर आप कितनी भी अच्छी तैयारी करके बैठो, कितने भी अच्छे डेवलपर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। पहला मैम सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आप प्री पे फोकस करने 2 मंथ्स आप आराम से जितना भी मॉक्स लगा लो। आप ऑली बोर्ड पे दुनिया भर के मॉक्स अवेलेबल है, आप मॉक्स लगाते जाओ, आपकी स्पीड आती जाएगी। एंड वेन एवर यू गेट दैट स्पीड यू विल फॉर श्योर क्लियर द प्री। और एक बार प्री हो जाता है तो मैम फिर खुद अपने अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आ जाती है कि हाँ कर लेंगे। सो अभी आपने प्री की तैयारी कितने टाइम मतलब में किया था, कितने मंथ्स में ऐसा? प्री की तैयारी मैम मैंने 2 महीने ही की थी, ज्यादा ज्यादा नहीं कर रहा था मैंने तैयारी। मैंने बस ओके। अप्रोच अपना ये रखा कि मैं सीधा ही मॉक्स उठाता था। मैं जैसे कोई भी हम्म। कॉन्सेप्ट, कोई टॉपिक है, पहले वो हम्म। एक टॉपिक गो थ्रू कर लिया मैंने। गो थ्रू करने हम्म। के बाद एक दो सवाल लगा लिए। उस पे क्या है हम्म। कि मैम व्हेन यू सी द वीडियोस, कोई भी हम्म। टॉपिक आपको चीजें सब समझ में आ जाती हैं। जी आप जी। कोई भी टॉपिक पढ़ोगे आपको लगेगा बस हो गया, अब तो ये हम्म। टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया। बट जब आप हम्म। सवाल बनाने बैठते हो तब आपको समझ में आता है कि अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। तो मैं वही हाँ। अप्रोच करता था, आई जस्ट गो थ्रू वन टॉपिक एंड देन आई टेक अप मॉक्स एंड जस्ट कीप ऑन गिविंग मॉक। उससे क्या 10 तरह के क्वेश्चंस भी मेरे प्रैक्टिस हो जाते थे। कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं स्ट्रांग जोन है, वो सब भी फिगर आउट हो हम्म। गया। तो सब मिक्स अप करके मैंने सिर्फ और सिर्फ मॉक्स के थ्रू ही प्रिपरेशन की है। मैं कुछ पढ़ता था, मॉक्स देने बैठ जाता था। So they helped me a lot to increase my speed, accuracy, and everything. ऑब्वियसली मॉक्स के, एवरीबडी सेज दिस कि मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड मॉक्स के बाद जो एनालाइज करना होता है कि कहाँ हम्म। पे गलती हो रही है, कहाँ पे सही हो रहा है, वो सब तो आपने भी किया था, आई होप। यस मैम, एनालिसिस, क्योंकि आपको बहुत चीजें लगती है जब आप क्वेश्चंस बना रहे हो तो आपको लगेगा कि आपने सही बनाया है। जब आप एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि 2+2 आपने 6 भी लिखा हुआ है। तो वो हाँ। हो जाते हैं मैम, वो पता नहीं लगता है। यू यू आर जस्ट हम्म। गोइंग विद द फ्लो एंड यू थिंक दैट ओके हम्म। 2+2 है, क्या ही गलती कर देगा हम्म। इंसान। But I have seen myself only like 9/3. I have written 9, and I was not able to figure that mistake for half an hour. Why is the answer not Exactly. coming correct? Then after half an hour, हाँ। I figured out that अच्छा 9/3 is 3. So हाँ। जब वो माइंडसेट हो जाता है फ्लो में मैम, आपको समझ में नहीं आता है कि आप क्या गलती कर रहे हो। So to overcome that, practice is must, and after that, analyzing that what you are doing wrong, rather than हम्म। just keep on going. आप दिन में कितने मॉक लगाते थे जब प्रीलिम्स का आप तैयारी कर रहे थे? दिन में मैम अगर ऑफिस से टाइम मिल जाता था तो मैं दो तो लगा देता था, नहीं मिलता था तो एक तो लगाता ही था मैं। क्योंकि एक अच्छा। लगाना उसके बाद एनालिसिस करने में 2-3 घंटे तो चले ही जाते थे। एक तो लगाता ही था मैम, हर हर दिन। अभी प्रीलिम्स की तैयारी के बारे में आपने बोल दिया, अभी मेंस की आपने कैसे तैयारी की थी, कैसा आपका स्ट्रैटेजी था, प्लानिंग कैसे थी, टाइम कैसे डिवाइड किया था आपने, ईच एरिया ईच सेक्शन पे कैसे किया था आपने? मैम मेरी जो बैकग्राउंड थी वो मुझे मेंस में काफी हेल्प कर गई, क्योंकि हम्म। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई रिमेम्बर कि हम्म। 2 दिसंबर को शायद प्री का रिजल्ट आया था, और हम्म। 14 दिसंबर को एग्जाम था मेंस का। आई वॉज नॉट इवन श्योर कि मेरा प्री क्लियर होगा कि नहीं, बट सो आई हैड ओनली 10 टू प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जाम। तो मेरी टेक्निकल स्ट्रेंथ जो पहले से स्ट्रांग थी उसके कारण मैंने बस मैम आई जस्ट वेंट ऑन थ्रू एवरी टॉपिक। जो मुझे लग रहा था, अब 10 दिन में मेरे उतना समय था नहीं कि आई कुड कुड गो फॉर एवरी टॉपिक। सो व्हाट आई डिड वाज दैट आई जस्ट फिगर आउट दैट व्हाट आर माय स्ट्रांग जोन्स। जिसका स्ट्रांग रहता था मैं उसको एक बार गो थ्रू करके छोड़ देता था। और जो मेरा वीक टॉपिक्स था मैं अगेन वही करता था कि इसको छोड़ने से अच्छा है, और ना मेरे पास उतना समय था कि मैं सारा कुछ पढ़ सकूं। तो मैं क्या करता हम्म। था कि कोई भी ऑली बोर्ड का, जैसे आप लोगों के सब्जेक्ट वाइज मॉक्स रहते हैं, हम्म। टॉपिक वाइज मॉक्स रहते हैं, तो मैंने टॉपिक वाइज हम्म। मॉक्स उठाता था और उनको लगा देता था। उससे मुझे पता लग जाता था कि इस सेक्शन से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्या वो मैं बिल्कुल ही नहीं कर पाऊंगा, और अगर हम्म। 10 में से 5 कर पा रहा हूँ तो मतलब थोड़ा सा टाइम अगर मैं और इन्वेस्ट कर दूं तो 10 में से 8 भी कर दूंगा। तो वहां से मैम क्या हुआ, मॉक्स देते देते उसमें आप लोगों का जो एनालिसिस वाला सेक्शन रहता है, हाफ ऑफ द कंसेप्ट्स आर क्लियर फ्रॉम देयर इटसेल्फ। सो इफ यू डोंट हैव टाइम, I would suggest that if there is some topic in means that you're lagging and you are thinking कि अब इसमें टाइम इन्वेस्ट करूंगा तो 5 दिन चला जाएगा, तो उसमें बेटर है कि आप सीधा उसका मॉक्स उठाओ और मॉक्स दे दो 4-5। उसमें क्वेश्चंस हम्म। भी कवर हो पाएंगे, उसी क्वेश्चंस में आप नीचे देखोगे एक्सप्लेनेशंस में 10 कंसेप्ट आप और सीख लोगे। तो एक ही मॉक में आपको हो सकता है कि जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो क्लियर आउट हो जाए, इंस्टेड ऑफ गोइंग हम्म। थ्रू एवरीथिंग।
क्योंकि हम्म सिलेबस थोड़ा बड़ा है, आप हर चीज नहीं पढ़ सकते हो। रैदर यू जस्ट टेक अप द Yes. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड फिगर आउट द पैटर्न की व्हाट आर द थिंग्स दैट दे आर आस्किंग एवरी ईयर एंड हम्म प्रैक्टिस ऑन दैट। इफ यू हैव एम्पल टाइम तो फिर तो सारा पढ़ लो, तो बेस्ट ही है। हम्म नहीं है टाइम तो आप ऐसे कर सकते हो, हाँ क्योंकि मेरे पास आई डिडंट हैव मच टाइम, ऑफ कोर्स जॉब भी हम्म रहती थी और मैं हम्म सोच रहा था मेरा प्री नहीं होगा, तो आई हैड हम्म जस्ट 10 days bifurcation for that, but I scored nice good marks in mains just because of my PCMC and whatever I did in my past. बिकॉज एंड आपका अप्रोच भी इट्स लाइक वेरी करेक्ट। आपको आपको पता था कि आप क्या कर रहे हैं। मेनी पीपल आर कंफ्यूज्ड कि कौन सा रास्ता जाना है, कौन सा क्या वे करना है, वो आपको नहीं था। यू आर वेरी क्लियर अबाउट हाउ यू वांट टू अचीव योर गोल। सो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। आई मीन इट्स अ वेरी नाइस पॉइंट टू बी मेड। हूएवर इज वाचिंग द वीडियो आई थिंक दे विल गेट एन आइडिया कि कैसे वो अप्रोच लेनी चाहिए। सो इट्स ग्रेट। Approach is the एंड main thing, because there is 2 months to study. You should know that what हाँ you are studying. हाँ Everything you are studying does not come in the exam. But हम्म whatever you are studying, if that comes in the exam, then हम्म success is very close to you. That's it. आपने स्पेसिफिकली आईटी सिलेबसेस को कैसे टारगेट किया था? ऑब्वियसली योर एक्सपीरियंस डिड हेल्प यू, बट एग्जाम के लिए आपने वो सिलेबस, आईटी सिलेबस को कैसे फोकस में रखते हुए कैसे तैयारी की थी? पहले ही जैसे when I targeted all those exams जिसमें आईटी का हम्म मेन सीएस का सिलेबस हो, सिर्फ मैंने वही हम्म एग्जाम थे टारगेट किए। जैसे मैंने पिछले साल सेबी आईटी ऑफिसर भी आया था, मैंने हम्म एग्जाम प्रिपेयर करने से पहले ही सिलेबस फिगर आउट करा कि सिलेबस इसका सीएस से मैच कर रहा है या इसमें कुछ और भी चीजें हैं, जैसे हम्म जीके हो गया या बैंकिंग करंट अफेयर्स है, तो ये सब चीज उसमें हम्म इंक्लूडेड है कि नहीं। तो मैंने पहले ही हम्म एग्जाम सेग्रीगेट कर दिए थे कि अगर मैं हम्म अब आईटी का कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ आईटी वाला ही करूंगा, ताकि मेरा फोकस डाइवर्ट ना हो। क्योंकि आईटी के साथ अगर हम्म आप बैंक करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज पूछ रहे हो, तो मुझे पहले ही जो कम टाइम था उसमें फिर दूसरी हम्म चीजें भी प्रिपेयर करनी पड़ती। हम्म तो मैंने हम्म 2-3 एग्जाम ही सेग्रीगेट कर लिए थे सिलेबस मैच करके कि ओके, दे आर आस्किंग फॉर आईटी कोर सब्जेक्ट्स इन दिस एग्जाम्स, सो आई प्रिपेयर फॉर। हम्म प्री सबका सेम ही रहता है मैम, इंग्लिश क्वांट रीजनिंग रहता है। फ्रॉम देयर इटसेल्फ आई जस्ट बाइफरकेटेड ऑल दोस एग्जाम्स विद सीएसई सिलेबस एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दोस एग्जाम्स मैम। तो जैसे कि आप तब बोल रहे थे कि यू हैव यूज्ड ऑलिव वुड मॉक्स एज वेल। सो Yes, हाउ ma'am. वाज द एक्सपीरियंस? यू हैव ऑलरेडी मेंशन हाउ कैसे डिफरेंट सेक्शंस में वो डिवाइडेड है, क्या क्या है, बट हाउ वाज इट डिफरेंट और सिमिलर विद द एग्जाम पैटर्न? आपको कैसे हेल्प हुआ उसमें? To be very honest, there are too many mocks available. हम्म Every platform is offering you too many mocks. But the thing हम्म is that after giving the mock, the analysis section that I was talking about, that is the हम्म core, I guess, for Olipod. Because if you हम्म go through a mock of any other platform, they will just give you one line, कि this हम्म is the correct answer. So that does not help much. But when you give a mock on Olipod, you will see that there हम्म are 3 to 4 points. If there are four options in your mock, suppose a question has हम्म four options, whether it be the correct option or whether it be the wrong option, all those four हम्म options are explained. तो इससे क्या हम्म होता है कि अगर मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे 3 ऑप्शन पता था और एक नहीं पता था, मुझे कुछ भी नहीं पता था, पर सिर्फ वो एक सवाल लगाने के बाद मुझे वो चारों चीज पता लग गई कि आखिर वो चारों हम्म चीज है क्या। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ एक लाइन लिख दिया कि एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, उसके बारे में 2-4 लाइन का एक्सप्लेनेशन रहता है। जिससे तभी मैंने बोला कि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता है तो आप मॉक दे दो, उसमें आपको फायदा क्या है कि एक सवाल में ही आप 4 कॉन्सेप्ट सीख रहे हो। ऐसे करके अगर आप हम्म 50 सवाल भी लगा रहे हो दिन भर के, तो 200 कॉन्सेप्ट आपके आ गए। और जो पैटर्न आप लोग फॉलो कर रहे हो मैम, दैट इज वेरी क्लोज टू द एग्जाम पैटर्न। मतलब ऐसा नहीं है कि द मॉक्स आर जस्ट फॉर द सेक ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। थोड़ा तो रेलेवेंस रहता ही है कि अब डीबीएमएस है तो यू आर whatever you are figuring out that you guys are that okay, they are asking this type of questions, so you are also focusing closely on the pattern that the IBPS is asking. तो क्वेश्चन मैच तो नहीं करते, बट एक आइडिया, अब उसने नॉर्म 1 NF पूछा और आपके मॉक में 2 NF है, तो अब 2 NF के ऑप्शन में चारों हैं, तो वहां से आपको चारों कॉन्सेप्ट मिल गए। अब उसमें से एक भी अगर आपके एग्जाम में आ गया तो दैट क्वेश्चन हेल्प। So in that हम्म way, ma'am, mocks are very useful for that. Or too many mocks available, but I guess, ma'am, your platform's mocks are better. I would say the best because their explanations are very precise and genuine, correct explanation रहते हैं, just for the हम्म sake of explaining नहीं रहते।
Great. So your experience with Olive Board was great. So I'm really happy about it. Friend who suggested me to prepare for IT officer, he had also हाँ, prepared from Olive Board itself. So he only okay. suggested, man, go with Olive Board. They are best in this banking segment. So that's why I just straight away went with your mocks, man. So apart from mocks, have you watched any other YouTube videos or followed any faculty from Olive Board? I do not recall the name, ma'am, but I Hmm. guess I had seen some reasoning lectures that were available on YouTube on the free platform itself. Okay. रीजनिंग के कुछ वीडियोस देखे थे मैंने कि उसमें ट्रिक्स रहते हैं, तो मुझे जैसे कोई कोई टॉपिक से सिलोगिज्म था उसमें, दैट इज नॉट अबाउट कॉन्सेप्ट, दैट इज मेनली अबाउट ट्रिक। तो ऐसे कुछ कुछ Hmm. टॉपिक्स मैंने फिगर आउट करे जो Hmm. मुझे नहीं खुद से हो रहे थे, तो मैंने यूट्यूब Hmm. आपके हॉलीवुड के प्लेटफॉर्म से वहां से देख लिए, ताकि Hmm. वो भी मेरे साथ में कवर्ड होते जाए without Hmm. even like paying anything extra to you guys from your Hmm. YouTube itself. But the guidance is Okay. very great. Those short tricks or whatever the pattern that the faculties are coming up with to solve those Hmm. questions, they are helping a lot. They make your work easier instead of sketching like rubbing your pen for hours. You can just solve it, them within seconds. So now coming back to the interview stage, आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था? कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे? आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा था या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड था? इंटरव्यू एक्सपीरियंस अच्छा था मैम। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो हमें कुछ भी नहीं मिला था, मतलब हम्म। यूट्यूब पे बहुत सारे बंदे मेंस क्लियर होने के बाद सबके मन में यही सबसे पहली चीज आती है कि क्या पूछेंगे, कि हम्म। हम मैं आईटी से हूँ, मेरे से क्या पूछेंगे, बैंक तो नहीं पूछ लेंगे, बैंक तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैंने जितना इंटरव्यू दिया और जितने मेरे साथ वालों ने इंटरव्यू दिया, बैंक हम्म। वो तब तक आपसे नहीं पूछेंगे जब तक आपके प्रोफाइल में वैसा कुछ मेंशन नहीं होगा। तो ये बहुत हम्म। अच्छी चीज थी कि जिसका जो बैकग्राउंड था सिर्फ उसी से हम्म। सवाल पूछे जा रहे थे। अब मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ तो मेरे सारे सवाल आईटी से थे। कोई इलेक्ट्रिकल हम्म। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का था तो उसके मैकेनिकल के सवाल थे, कोई हम्म। इलेक्ट्रिकल था तो उसके इलेक्ट्रिकल के सवाल थे। तो द इंटरव्यूअर्स देयर टू सी दैट यू आर वेरी थॉरो विद द बैंक कॉन्सेप्ट्स और नॉट। उनको हम्म। बस ये चाहिए कि वॉट एवर यू हैव कम अप विद, जो भी आप प्रिपरेशन करके वहां इंटरव्यू देने पहुंचे हो, तुम्हें उतना आना हम्म। चाहिए। और हम्म। उतना अगर आ रहा है तो उसमें भी कॉन्फिडेंस से आना चाहिए। ये नहीं कि आप बस कुछ रट के चले गए हो एंड यू आर जस्ट गोइंग हम्म। ऑन एंड ऑन, बिकॉज दे डोंट वांट दोस आंसर्स। मेरे से वहां पे 7 या 8 उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे, बहुत शॉर्ट शॉर्ट। उन्होंने क्लियर कट पूछते गए, मैंने क्लियर कट जवाब देता गया। आई 5 से 6 मिनट इंटरव्यू चला था, उसके बाद दे सेंट मी। ओके। कोई वैसा टेक्निक कुछ भी, बस उन्होंने मेरे नाम के थोड़ा एक नाम को पूछ लिया था उन्होंने कि टेल मी योर हम्म। नेम इन हिंदी, लाइक स्पेल इट आउट। सो आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हाँ, ओके। Ended up in a joke and all, nothing much. But हम्म। yes, ma'am, they can ask questions. So all you need to do is be confident. If you are confident, तो फिर वो कुछ भी पूछेंगे आप, या हम्म। तो ना बोल दो आप, that is the best thing कि sorry sir I'm हाँ। not able to answer. That is, instead of saying anything you just say that I'm very sorry sir. Even that also हम्म। helps. Keep that in mind. Don't just for the sake of answering कि नहीं आज सारे जवाब दे के ही जाऊंगा, तो फिर तो नहीं हो पाएगा। कीप कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, और जो पूछे आता है आप जवाब दे दो, हम्म। नहीं आता है आप हम्म। सीधा बोल दो। दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल पीपल, द इंटरव्यू पैनल दैट वेयर। वो खुद ही आपको सपोर्ट करेंगे कि हाँ आप देख रहा है कि अगर देख रहे हैं वो कि अगर सामने वाला इज लैगिंग समवेयर, दे हेल्प यू। ओके, आप कोई बात नहीं है, आप तू वापस से बताओ। Being confident and being honest in the interview, I think matters a lot यहाँ पे. Oh, yes, ma'am. They are very experienced people. You cannot fake them. Hmm. With your too Yeah. little of expertise, experience, you cannot go inside and try to fake those guys who are Hmm. sitting with 30 years of experience. So you have Hmm. to Hmm. respect them. Hmm. If you respect them, Yeah. then they will also take you Hmm. lightly. If you do Hmm. not show respect what they deserve, then there will be a problem. So आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा था इंटरव्यू का. इट्स ग्रेट लाइक यू हैव आपने जैसे कि बताया कि प्रीलिम्स में आपका डिफरेंट अप्रोच, मेंस में आपका डिफरेंट, इंटरव्यू में आपका डिफरेंस. इट वाज नाइस. सो अभी ऐसा है कि ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग, मे बी आपको भी ऐसा लगा होगा कि ऐसे होता है ना, लो पॉइंट आता है कि नहीं करना है ऐसा, और या फिर प्राइवेट में देख लेते, ऐसा कुछ हुआ था या फिर यू आर लाइक ऑलवेज मोटिवेटेड टू डू? ऐसा नहीं था कि मैं एकदम पूरा ही मोटिवेटेड था कि मुझे एकदम ये एग्जाम निकाल ही लेना है, क्योंकि मैम दिमाग बहुत डाइवर्ट होता है। प्राइवेट में जो कुछ फायदे हैं जैसे वर्क फ्रॉम होम है,
तो जब आप अपने दोस्तों को देखोगे कि दे आर अर्निंग गुड एंड दे आर लाइक सिटिंग एट होम एंड एंजॉइंग एंड वर्किंग, दैट इज नॉट द प्रिविलेज इन गवर्नमेंट सेक्टर्स, गवर्नमेंट जॉब्स। तो वहां पे माइंड डाइवर्ट होता था कि लेट्स प्राइवेट ही चलते हैं, पैसे भी प्राइवेट में ज्यादा है, बट द सिक्योरिटी, द स्टेबिलिटी दैट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स यू, दैट इज नॉट देयर इन द प्राइवेट सेक्टर। सो बस वही सोच सोच के मैम कि एक स्टेबल लाइफ चाहिए, एक शांति चाहिए। तो फॉर दैट ओनली आई केप्ट ऑन कि चलो ठीक है, करते हैं करते हैं। मन तो नहीं करता था मैम, क्योंकि ऑफिस से आके फिर लगता था कि चलो दोस्त भी पार्टी कर रहे तो मैं भी पार्टी कर लेता हूँ, बट समहाउ कैसे कुछ करते करते आई वेन दूसरे कमरे में जाके बैठ जाओ, पढ़ लो, तो कंपनी चेंज करके फिर यहाँ तक पहुंचा, वरना तो मैं तो नहीं आता। मतलब इतना डिटर्मिनेशन रहना कि नहीं, करना तो है ही, ये मुझे चाहिए, ये आपका गोल होता है ना कि ये मेरा विजन है, मुझे इसको अचीव करने के लिए अभी चाहे जितना भी हो जाए प्रॉब्लम्स, वी आर गोइंग टू डू इट। दैट्स अ गुड अप्रोच, आई रियली लाइक्ड इट। एंड अभी ऐसा आप बता सकते हैं कि 2 to 3 गोल्डन टिप्स फॉर द एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर द एग्जाम, नेक्स्ट एग्जाम, तो उनके लिए कि वो क्या कर सकते हैं अपनी स्केड्यूल में, या फिर कैसे अप्रोच क्या कर सकते हैं। टिप्स तो मैम, वो सबसे पहली चीज तो मैम ये कि प्रैक्टिस आप जितना करोगे दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आप दिन, इफ यू आर वर्किंग, इफ यू आर नॉट वर्किंग, इफ यू हैव टाइम, एटलीस्ट टेक 2 to 3 hours टाइम, और आप अपने टॉपिक्स को डिवाइड कर लो कि अगर आप 2 घंटे प्री के लिए फोकस कर रहे हो तो आप 2 घंटे प्री पे ही हो। क्योंकि हर एग्जाम आपस में वो इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं है कि प्री क्वालिफाइंग है तो मैंने बस हम्म। इतना कर लेना है कि मैं क्वालिफाई कर जाऊं। प्री हमारा क्या है कि क्वालिफाइंग है तो हमने उस पर कम ध्यान दिया है, क्योंकि हो सकता है कि जो कट ऑफ इस बार था वो अगली बार नहीं होगा। आप 40 नंबर के हम्म। हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हो, अगली बार कट ऑफ 60 चला गया तो यू विल बी नो वेयर इन द फ्रेम। सो आप हम्म। अगर दिन में 4 घंटे ही पढ़ रहे हो तो आपके पास अगर एक एक घंटा ही समय है तो आप सबको बाइफरकेट करके पढ़ो, कि आप 2 घंटे उसमें हम्म। प्री के लिए हर दिन दे रहे हो तो हर दिन दे रहे हो, और 2 घंटे मेंस के लिए दे रहे हो तो आप 2 घंटे हर दिन मेंस के लिए दे रहे हो। इंटरव्यू के लिए आप बाद में कर सकते हो, क्योंकि मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए बहुत टाइम रहता है मैम। तो यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट, बट प्री और मेंस में टाइम नहीं रहता है। प्री का एग्जाम, इफ यू आर प्री का एग्जाम दे के आप आ रहे हो, आप सोच रहे हो कि एग्जाम देने का रिजल्ट आने के बाद मैं तैयारी शुरू करूंगा मेंस का, तो टाइम रहता ही नहीं है। 8-10 दिन देंगे आपको प्री और मेंस के बीच में। सो आपको पहले से ही तैयारी करके चलनी पड़ेगी, और जितने भी मॉक्स हो सके आप मॉक्स लगाना है। तो बिना मॉक्स के मैम पढ़ने से कुछ नहीं होता अनटिल अनलेस यू प्रैक्टिस दैट थिंग। आपको कोई भी एक लेक्चर देखो, आपको लगेगा कि हाँ मेरा ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया। 2 सवाल आप बनाने बैठोगे, आपको लगेगा कि बेटा अभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो पहले तो ये मैम कि प्रैक्टिस करो आप जितना भी कर सकते हो। दूसरी चीज मैम की मॉक्स जितना भी हो आप मॉक्स लगाओ, और कभी इतना हार्ड मॉक नहीं लगाना कि आप सोच रहे हो कि 100 में से मेरे 20 नंबर ही बन रहे हैं और डिमोटिवेट हो जाओ। क्योंकि ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स है जो जबरदस्ती हार्ड मॉक्स दिखाने के लिए कि हमारे मॉक्स बहुत हार्ड है। अब स्टूडेंट बैठ रहा है, वो 100 में से 10 नंबर ही ले पा रहा है, कट ऑफ उसकी 50 की है, तो हम्म। दैट डिमोटिवेट्स द स्टूडेंट की मैं इसी में स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ तो मेन एग्जाम में क्या करूंगा। तो इसीलिए आप जो भी चीज करो, जस्ट फॉलो वन थिंग, डू नॉट फॉलो एवरी प्लेटफॉर्म, हम्म। and this is the best platform to follow up things. So just follow one platform, follow one teacher, follow one guide। क्योंकि 10 लोग 10 तरीके से पढ़ाते हैं, आप फिर वो मिक्सअप हो जाता हम्म। है। एक ही हम्म। चीज करो, जैसे भी करना है करो आप, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। अब तो मैम बस यही टिप्स है मैम, टिप्स तो क्या ही दूं मैं, प्रैक्टिस ही करनी है मैम, प्रैक्टिस होगा तो आराम से हो जाएगा। मतलब whatever you said, they are very practical insights, I would believe. And again, thank you, Ashish, for sharing your थैंक journey and insights. Yeah, we have come to the end of the interview, and we are sure that this session will actually inspire and guide many aspirants. And आपने जो भी tips बोला, it was very helpful. यू सो मच मैम।